students, welcome to Pathshala. So I'm Sonal. Today we will study about irrigation. In the last lecture we have studied that what is irrigation. Irrigation is basically supplying water to the plants. Now in previous days or in early days, farmers were basically dependent on rain, on weather for the supply of water to the crops. But as we all know that there are many climatic changes now, so modern irrigation methods have been developed to fulfill the need of water for the plants. Why this water is important for the plants? Plants need water to grow. The process of photosynthesis. You all know that photosynthesis is the process by which plants make their food using carbon dioxide, water and sunlight. So water is a necessity for the plants. So how this water is supplied to the plants, we'll study about that. That is methods of irrigation. There are basically two methods for irrigation, the two broad classification for the irrigation methods. The first is traditional method and the second is modern method. Traditional methods include moat, that is also known as pulley system, chain pump, dhekli, rahat. And in modern methods, we say they are sprinkler system and the drip system. So let's study about these systems in detail. First, modern methods of irrigation. The first method is sprinkler system, students. Modern methods of irrigation have been developed in recent decades only. And no doubt these modern methods of irrigation are much efficient than the previous methods, than the earlier or the traditional methods of irrigation. So first is sprinkler system. Sprinkler system basically copies the or mimics the phenomena of a rain. बारिश होती है ना जैसे, उस तरीके से ये उस चीज को कॉपी करता है. The phenomena is similar to raining. So what happens in sprinkler system, students? A main pipeline is laid in the field. Field के अंदर एक main जो pipeline है उसको सेट कर दिया जाता है and perpendicular pipes. Perpendicular means इस तरीके से मेन पाइपलाइन है और इस तरीके से परपेंडिकुलर, दैट इज 90 डिग्री. परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स. नोजल्स अपर पार्ट होता है जो इस तरीके से रोटेट करता है. फाइन. So having rotating nozzles at the top are joined to the main pipeline at regular intervals. थोड़े स्पेस के बाद, फिक्स स्पेस के बाद ये जो परपेंडिकुलर पाइप्स हैं ये मेन पाइप से जो है अटैच कर दी जाती हैं एंड इट हैव अ रोटेटिंग नोजल ऑन इट. सो स्टूडेंट्स, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इन स्प्रिंकलर सिस्टम? When water from a tube well is allowed to flow through the main pipelines, जो नीचे main pipelines जो है उसमें जब पानी with pressure flow करता है with the help of a पंप क्यों यूज किया? बेसिकली टू ड्रॉ दी वाटर. पानी को ट्यूबवेल में से खींचने के लिए हमने पंप का यूज करा. तो वो जो पानी है इट फ्लोज फ्रॉम द मेन पाइपलाइन में से फ्लो करता है और वो जो ऊपर परपेंडिकुलर पाइप्स है उसमें आता है एंड एज द नोजल इज रोटेटिंग, नोजल जो है ऊपर जो ओपनिंग है वो रोटेट कर रही है तो उसमें से वो जो पानी है विद प्रेशर बाहर निकलता है. नोजल जो है उसमें से जब पानी बाहर निकलता है तो वो रेन ड्रॉप्स की फॉर्म में, काफी सारी बूंदों की फॉर्म में जो है वो बाहर निकलता है. सो इट इज सेड कि जो स्प्रिंकलर सिस्टम है, एज आई टोल्ड यू, कि वो रेनफॉल के फिनोमेना को कॉपी करता है. वाटर गेट स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप प्लांट्स. वाटर जो है वो क्रॉप्स के ऊपर स्प्रिंकल हो जाता है. नाउ ये जो मेथड होता है स्टूडेंट्स, द स्प्रिंकलर सिस्टम, इट डजंट मैटर हाउ लार्ज द फार्म इज, कितनी बड़ी लैंड है, वो दूर दूर तक पानी जो है वो स्प्रिंकल कर सकता है. यू हैव सीन इट ऑल्सो कि ये पार्क में, आपके घरों के पास जो पार्क्स होते हैं उसके अंदर भी स्प्रिंकलर सिस्टम जो है वो सेटअप किया जाता है. सो वाटर जो है वो स्प्रिंकल हो जाता है डिफरेंट क्रॉप्स के ऊपर. फाइन. नाउ लेट्स मूव फर्दर. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम? एज आई टोल्ड यू,
कि इट डजंट मैटर कि फार्म जो है उसका साइज कितना बड़ा है, वाटर जो है वो प्रॉपर्ली स्प्रिंकल हो जाता है. सो इट इज मोर यूजफुल फॉर द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल. जहां पे पानी जो है अवेलेबल नहीं है प्रॉपर क्वांटिटी में, जहां पे हम बहुत ज्यादा पानी क्रॉप्स को नहीं दे सकते हैं इजीली, वहां पे स्प्रिंकलर सिस्टम जो है वो हेल्प करता है. एंड इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर सैंडी सॉइल. नेक्स्ट इज drip system. This is another modern method, that is drip system. So now students, whatever the modern method we are using for irrigation, it is basically used so that the water requirement of the plant can be fulfilled. एंड ये जो मेथड्स हैं ये हेल्पफुल इसीलिए हैं क्योंकि अगर बारिश कम है या कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे प्रॉपर वाटर अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे प्लांट्स को प्रॉपर पानी मिल सके विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ वाटर, तो ये जो मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन है, स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम, दे आर सक्सेसफुल. सो नेक्स्ट मेथड इज ड्रिप सिस्टम. देयर इज अ नेटवर्क ऑफ नैरो पाइप्स विद स्मॉल होल्स इन द फील्ड्स. जो मेन फील्ड होती है उसके अंदर क्रॉप के पास, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स ये आपकी क्रॉप है, यहाँ पे इसके पास जो है पाइपलाइन जो है वो ले की जाती है, और जहां पे क्रॉप की रूट्स होती हैं, यहाँ पे इन पाइपलाइंस में क्या होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं. सो व्हेन वाटर फ्लोज थ्रू द नैरो पाइप्स, जब इन पाइप्स में से पानी जो है वो फ्लो करता है, इट फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप एट द पोजीशन ऑफ रूट्स ऑफ द प्लांट्स. वो जो पानी है वो यहाँ, इसकी जो ओपनिंग है वो रूट्स के पास ही रखी जाती है प्लांट्स के, सो दैट पानी जो है वो वेस्ट ना हो. ठीक है, क्योंकि रूट्स ही हैं प्लांट्स में जो वाटर को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं फ्रॉम द सॉइल. तो जब पानी नैरो पाइपलाइंस में से आता है तो इस होल में से पानी जो है वो रूट के पास क्या होता है, रिलीज होता है, एंड प्लांट को क्या मिलता है, पानी मिल जाता है. दिस वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द सॉइल. ये मिट्टी जो है वो इस पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, एंड फर्दर रूट्स इस पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, एंड देन इट इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट. सो दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ड्रिप सिस्टम. नेक्स्ट, what are the advantages of drip system? So it provides water to plants drop by drop, so there is no wastage of water. As I told you कि क्योंकि बूंद बूंद करके प्लांट को पानी मिल रहा है, तो इसमें कोई भी प्लांट के जो पानी प्लांट को मिल रहा है उसमें कोई भी वेस्टेज ऑफ वाटर नहीं है. नेक्स्ट इज इट मिनिमाइज द यूज ऑफ वाटर इन एग्रीकल्चर. क्योंकि हम उतना ही पानी सप्लाई कर रहे हैं प्लांट को जितना प्लांट को चाहिए, तो वेस्टेज नहीं है. दैट मीन्स पानी का जो यूसेज है वो मिनिमाइज हो गया है, कम हो गया है. एंड इट इज ऑल्सो यूजफुल इन दोज रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर. जहाँ पे पानी बहुत कम है जिन एरियाज में, वहां पे ये वाले सिस्टम्स जो हैं वो सक्सेसफुल हैं.